جو لگ دئی زور لگا لے، جو لگ دئی زور لگا لے، جو لگ دئی زور لگا لے، توڑ گل وچ گھنگرو پالے جو بندیاں نہیں ہرنا، جو لگ دئی زور لگا لے، جو لگ دئی زور لگا لے، قریشی سربارے جو بندیاں نہیں کرنا۔ ہم بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم مناظرہ کرنے کے لیے دور کا سفر کر کے آئے ہیں۔ برائے مہربانی جو آپ کے صدر مناظر نے دعویٰ کیا ہے، خدا را اس پہ دلیل دے دے کہ جواب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس پہ جناب دلیل دے دے، بات کریں۔ ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ ہم سے مناظرہ کریں۔ خدا را آپ دلیل دے، بات آگے بڑھائیں۔ میں اس بات پہ دلیل دے رہا ہوں کہ جواب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نے سورۃ البقرہ دوسرے رکوع کے اندر تیسرے رکوع کا آغاز اس طرح کیا، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اب تمام مفسرین لکھتے ہیں اعبدوا یہ دعویٰ ہے، عبادت کرو، اب یہ دعویٰ ہے۔ اب اس کے دلائل یعنی جواب دعویٰ، جو اس دعویٰ کا جواب ہے، عبادت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اب اس پر رب تعالیٰ نے آگے 3 آیتوں کے اندر 5 دلیلیں بیان کی۔ ہم نے دعویٰ کیا تھا، ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ جواب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے۔ اب اس پر میں دلیل دینے لگا۔ قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے عام جو سادہ قرآن ہے وہ نہیں اٹھایا، یہ القرآن جو تفسیر کے بغیر ہے، اس کو سادہ قرآن بھی کہتے ہیں۔ ہاں سادہ کہتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنی باری میں کہو گے، اپنی باری میں کہو اور ٹنگیاں ٹنگا تے پولیس مقابلے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اب جب میں نے یہ بات کی کہ اعبدوا یہ دعویٰ ہے، تو انہوں نے اسی بات سے بات نکالتے ہوئے کہا، اچھا ایک اور آپ نے دعویٰ کر دیا کہ رب تعالیٰ مدعی بھی ہے، اب اس پر بھی آپ دلیل دو۔ اب ہم سے دلیل پر دلیل کا مطالبہ، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو دعویٰ بنا کے اس پہ دلائل کے مطالبے کرنے، یہ انہوں نے کام کیا۔ اب ہم دلیل کا اسی دعوے پر جو دلیل ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا وہی پہلے والا سوال وہ برقرار رہے گا کہ دلیل کی تعریف بھی کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اعبدوا یہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا، جو کہ عبادت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ عبادت قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آیا ہے اس کا معنی توحید ہے، اس لیے مفسرین نے آپ جلالین اٹھا کے دیکھ لیں، یا ایھا الناس اعبدوا اے وحدوا یہ نکالا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعویٰ ہے، اب میں ایک یہ تھا کہ بھئی اپنے تفاسیروں کو میں اٹھاتا اور الحمدللہ بہت ہے، لیکن میں نے وہ جو انہی کی گھر کی تفسیر تھی آپ کے ہی مولوی صاحب نے لکھی ہے، اسی کی اسی آیت کے ذیل کے اندر یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق اور لا شریک ہونے پر دلائل اسی کا۔ اب اس کی وضاحت مزید کی، یہ اس پر لگا ہے کیونکہ اور وہ اللہ ہی ہے، کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے وہی اللہ ہی ہے۔ کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس نے
نے یہ بات کی تھی کہ جب دعویٰ ہے تو رب تعالیٰ مدعی ہے. اب جب رب مدعی بن گیا تو رب کے مدعی ہونے پر بھی دلیل دو. میں ایک اپنے دعویٰ پر نہیں، اپنے دونوں دعویٰ پر ایک تیر دو شکار کر رہا. وہ اللہ ہی ہے کیونکہ اسی نے یہ دعویٰ کیا ہے. والا مولوی غلام رسول سیدی بریلوی بریلوی کی گھر کی بات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی سوالتا ہوں چراغ میرا ہے چراغ میرا ہے. اچھا توجہ ہے، بات ہو گئی، بات ہو گئی. چپ چپ اب میں بات کرتا ہوں، وہ اب ہمارے آئیں گے، آپ ہماری ذات کے اندر اب آؤ گے. بات ہو گئی. یا رب تعالیٰ نے دعویٰ کیا، آپ کے بریلوی صاحب نے خود لکھا کہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے اپنے دلائل وحدانیت لا شریک پر دلائل رب نے دیے ہیں. میں نے بات نہیں کی تھی کہ رب تعالیٰ نے دعویٰ یہ کیا یا ایھا الناس اعبدوا. رب تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا لوگوں میری عبادت کرو، لیکن اپنی عبادت کو، اپنی توحید کو منوانے کے لیے رب تعالیٰ نے 5 دلائل دیے ہیں. اس میں 3 ایسے ہیں. اب جواب دعویٰ تھا، دعویٰ اور آگے کیا ہے اور جواب دعویٰ. دلیل ہے، دلیل ہے، میری بات یہی تو دلیل ہے. آگے دعویٰ بھی اللہ کا، جواب دعویٰ بھی اللہ کا، دعویٰ بھی اللہ کا، جواب دعویٰ بھی اللہ کا، اور دعویٰ بھی اللہ کی طرف، جواب دعویٰ بھی اللہ کی طرف. اور رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے سوال بھی کیے ہیں، جواب دیے ہیں، سوال بھی کیے ہیں. القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، جو قرآن ہے یہ سوال کر رہا ہے لیکن جواب خود دے رہا ہے. یہ رب جواب دے رہے ہیں. سوتی تو پتا ہوتا پورا دے بندہ پورا دن آدمی عورتوں کے بغلوں کے ساتھ کندھے ملائے اور بندوں کے ساتھ کندھے ملاتے ہوئے جلوس نکالے، ان کو پورا دن اور میں نے اپنے اس دعویٰ پر دلیل دے دی ہے. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ دلیل کی تعریف کریں، دلیل کی تعریف کریں. مولوی صاحب بات سنیں، جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے دلیل. کیا بات ہے مولوی صاحب، دعوے سے دلیل ہے، جواب دعویٰ پورا کرو. میں نے تو سمجھائی نا، انہوں نے جگاؤ سمجھائی. ایک دوسری آ رہی ہے محل بیان. مولوی صاحب، مولوی کاظمی صاحب کی پہلے بھی دلیل دی ہے، مولوی غلام رسول سیدی کی. یہ سے بڑا ہوتا ہے کہ یہ میری بات سنیں، آپ نے میری ان کی گفتگو سنی تھی، ان کی گفتگو سنی. ان کا دعویٰ کیا ہے کہ جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے. میں پھر تو لاتا ہوں، جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے. میں اس پہ دلیل مانگ رہا ہوں، میں اس پہ دلیل مانگ رہا ہوں، اس پہ ہمیں دلیل دیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. تو آپ یہ دے رہا ہے کہ دلیل دعوے سے بڑی ہوتی ہے، جو آگے دلیل اب دیکھو، اب قرآن پاک نے منافقین کا ایک دعویٰ نقل کیا ہے اور رب تعالیٰ نے اس دعوے کا جواب کئی ساری آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا. منافقین کا دعویٰ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ دعویٰ تھا. منافق کہنے لگے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. منافقین کا یہ دعویٰ تھا. اب رب تعالیٰ جب جواب دینے پہ آیا تو کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून रब ताला ने जवाब दावा उन्हीं के दावे को रद्द करने पर जो रब ने जवाब दावा पेश किया वो कई आयतों के अंदर किया। तारीफ करोगे हमारा मुतालबा पहले आप दलील दोगे। दलील की तारीफ पहले आप अपने दावा को दलील दोगे। आपकी किताबों से दिए हैं पहले आप दावा को दलील आपकी देंगे। किताबों से दिए हैं आप क्यों और आपके पल्ले कुछ नहीं इसलिए आप रसीदियाँ भी हमारे पास फलां है ये है। अब तुम्हारी रसीदियाँ कहाँ गई? रसीदियाँ आज तुम्हारी किताब तुम्हारा साथ क्यों छोड़ गई? और किताबें सारी पढ़ी हैं और ये सैंपल वास्ते खाने वास्ते ले आए पढ़ने वास्ते ले आए कामरीन साडे ने तुसा मान गए हो कि ये साड़ियां ने रसीदियां साड़ी मान गया है ना मौलवी साहब मौलवी साहब अगे अपना तू नस्बी वालदैन छड़िया भी छड़ जाने जदों वालिया है तू है ना जानता नहीं समझाई ना तू अपने जवाब आके ना तू आके ना मैं आपकी नस्ल चेंज की मैं आपकी नस्ल बदली मैं क्या मैं तू आके मैं आपकी नस्ल बदली तू आके नस्ल बदली तो उन्हें भी छड़ जाने सर्विस के अंदर एक ना आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहता हूँ हाँ, जवाब मैं यही कहना चाहता हूँ कि बात नहीं थी लेकिन बात बनाई गई लेकिन उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे अंदाज से उन्हीं की किताबों से तोड़ किया। इन्होंने दो बातें की थी हमारे ऊपर, एक अल्लाह की गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। अच्छा अल्लाह को तुम कहते हो मुद्दई है, अल्लाह मुद्दई है, मुद्दई की गुस्ताखी मेरे ऊपर फिट की थी ना। मैं कहता हूँ कि अगर हम बात करें कि रब मुद्दई है तो हम गुस्ताख हैं तो तुम्हारे अकाबिर लिख जाए तो बिल्कुल सैयदी औलाद रहने खुदा दावा कर रहा है और आगे दलाइल दे रहा है और ये तो मान गया दावा जो दलील दे रहा है तो जवाब दावा साबित कर समझ आ गया? ये मुख्तसर जुमला कुरान पाक ने मुशरिकीन के दावे का नकल किया। रब ताला ने फरमा के आगे उसकी कई सारी आयतों के अंदर वजाहत की है जो उन्हीं के दावे की वजाहत और उन्हीं के दावे का जवाब था। जवाब दावा है गुस्ताखी तुमने की है, गुस्ताख मैं मान जाऊंगा। जब मैं हदीस पेश करके दलील आप उस पर रोक सकते हैं मुझे? मैंने हदीस पेश करके दलील दी है फिर आपको असल बनाओ मौजूद पे आ रहा हूँ। मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा है कि कियास से साबित है, हालांकि अहले इल्म जानते हैं अल कियास क्या है इतना नहीं पता। कियास जाहिर करता है साबित तीन बातें मैंने अर्ज कर दी। चौथी बात मुनाजिर साहब ने यजमाऊन का तर्जुमा करते हुए कहा है मेरे नबी की उम्मत तुम खुशियां मनाओ, हालांकि अहले इल्म जानते हैं कि यजमाऊन हायत का सीधा हाजिर करेंगे। इस बंदे को सर फिर आती उसको मुनाजिर के लिए लेके आओ और दलील क्या रहे हो कोई गुम्बन को ले आते अपनी हालत भी देख लो और दावे भी देख लो। ये फतावा रशीदिया मुझे दिखाओ, ये फतावा रशीदिया के अंदर मौलवी अब्दुल रशीद इनके जो है गंगोही साहब और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह है, उनका नाम भी नहीं आता है, इनको कह रहे हैं मौलवी अब्दुल रशीद गंगोही। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। और तुझे नाम याद कर गए मौलाना नानी के घर आ रहे सो तुझे मुरादे करो आ रहे किताब। मुनाजिर साहब ने आयत पेश की कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। मिम्मा यजमऊन का तर्जुमा किया है कि जो मेरे ए नबी के उम्मतियों इकट्ठा कर रहे हो इनसे मिलाद मनाओ। हालांकि यजमऊन का सीधा काफिर जुड़ी है कि वो भी कुछ जमा कर रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी गलती है कि जो काफिर वाला सीधा था वो सहाबा को फिट किया इसने। दलील तो सीधी सुन लो पीछा करके अभी चुप हो जाओ यार। हाँ हाँ मैं कहता हूँ आगे चल दलील मैं देता हूँ।
दूसरी बात, देखिए हमने कुरान सुन्नत इजमा और कियास सुभान अल्लाह, बिल्कुल इसी से दलील आएगी। मेरी बात सुन ले पूरे, फिर दलील भी आ रही है। नंबर 5, दावा लिखा था मुस्तहब का और अब कह रहे हैं कि ये क्या है, सुन्नत है। क्या कहा है? सुन्नत मुबारका है। सुन्नत मुबारका इसको कहा। सुन्नत मुस्तहब नहीं होती। आज सुने, बात सुने, आज यही बतला दें कि सुन्नत और मुस्तहब एक चीज है। साबित करें इसको, आप इसमें दलील दें अपनी कर्म के अंदर। ये दलील देंगे कि सुन्नत और मुस्तहब एक चीज है। ये आनी चाहिए ना, ये उसूली बातें हैं। अभी मुनाज़रे की बात हम नहीं इनके सुने, मुस्तहबात का भी पता। मैं आगे आप खामोश हो जाए ना, अभी अपने टर्म में बात करेंगे ना। अगली बात मौलाना ने पेश की है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। यही लफ्ज कुरान पाक में कितनी जगह आया है? मसलन कुरान पाक में आया है, दलाइल का जवाब हम इंशाअल्लाह ऐसे देंगे कि याद रखेंगे कि कैसे दलाइल का जवाब आया। कुरान पाक कहता है लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। जब ये रूमी गालिब आएंगे ना तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। यफ़रहून फरा, ये मादा एक ही है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या रूमियों के गालिब आने पर सहाबा ने ऐसे खुशी मनाई थी जैसे तुम खुशी मनाते हो? एक बात। दूसरी आयत कुरान पाक शुहदा के मुतल्लिक़ कहता है यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल। शुहदा खुश भी होते हैं खुदा की नेमत और फजल से। नेमत का लफ्ज भी है, फजल का लफ्ज भी है। आप देखिए, ये शुहदा को कभी आपने जुलूस निकालते देखा? क्यों नहीं? आपके कब्रिस्तान जो है इधर शेख खान में कोई मुर्दे जुलूस निकाले फिर रहे हो, शुहदा जुलूस निकाले फिर रहे हो। एक बात। दूसरी बात ये है, शुहदा को जो ये खुशी होती है, ये उसको क्या ईद कहते हैं? क्या झंडियां लगाते हैं? क्या ये जश्न मनाते हैं? क्या ये केक काटते हैं? क्या ये सारा कुछ होता है? हालांकि लफ्ज वहां भी फजल का है, वहां भी नेमत का है। आगे देखिए, फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। कुरान कह रहा है कि सहाबा किराम के मुताल्लिक़ कि तुम लौटोगे नज़वा से अल्लाह ताला के फजल और नेमत के साथ। अब बतलाओ, सहाबा किराम जो नज़वा से लौटे थे, फजल और रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत भी थी। कुरान ने नेमत और फजल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सहाबा ने जुलूस निकाले थे, सहाबा ने झंडियां लगाई थी, सहाबा ने जनाब की जश्न मनाए थे, सहाबा ने ईद मनाई थी। मालूम ये होता है कि ये कुरान पाक की तफसीर बेदाय कर रहे हैं। इतनी हदीस इन्होंने पेश की है ना। अच्छा, दूसरी आयत की तरफ आइए, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ये इन्होंने पेश किया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। ये आयत इन्होंने पेश की है। और अगर आप मतलब मैंने पेश नहीं की, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस इन्होंने पेश की है। और चूंकि इसमें भी नेमत का जिक्र है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, इसमें भी नेमत का जिक्र है। अब ये नेमत की वजह से कह रहे हैं हुजूर सबसे बड़ी नेमत है, तो हमें ये खुशी मनानी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, सहाबा ने सुनी या नहीं सुनी? सहाबा ने ये जुलूस निकाले? नहीं। क्या इमाम आजम से ज्यादा इनको कुरान आता है? नहीं। इमाम शाफी से ज्यादा आता है? नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल से ज्यादा आता है? इमाम मालिक से ज्यादा आता है? क्या शेख जिलानी से ज्यादा कुरान? शेख जिलानी के मुतालिक अहमद रज़ा ने लिखा है कि उनकी बात की मुखालफत करना दीन और आखिरत की खराबी है। शेख जिलानी की मुखालफत करके तुम्हारी दुनिया भी गई है, शेख जिलानी की मुखालफत कर। और अगली बात कहते जाओ, शेख जिलानी ने मिलाद के मुतालिक 10 मुहर्रम और हराम को लिखा है कि हुजूर का विलादत का दिन 10 मुहर्रम है। हाँ, मैं तो तालवीन में ये बात मौजूद है। दुनिया तो तालवीन में ये बात मौजूद है कि हुजूर की विलादत है। सेना की नहीं होता तो सारे तो बजना मेरा सारे तो आशूरा के मुतालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत गौस पाक फरमाते हैं कि हुजूर की विलादत 10 मुहर्रम को हुई है। और निकाल जुलूस, शिया तेरी शक्ल न बदल दे, निकाल जुलूस, निकाल झंडा लगा के बाहर, निकाल जश्न मना, केक काट। यारी शरीफ तो तुम्हारे पता लग जाए, पता लगे शिया तुम्हारी शक्ल न बदल दे, कुछ क्यों हुई है? गौस पाक की मुखालफत करके दीन के अंदर तुम्हारी बर्बादी हो गई, तुम्हारी बर्बादी, दीन भी बर्बाद।
तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो गया है। बुजुर्गा, पहले गौस पाक की मुखालफत करके जहन्नम से जाने का अपना छुटकारा बताओ। अगली बात, नेमत के मुताबिक कुरान पाक में काफी सारी नेमतें आती है। कुरान पाक ने कई नेमतों को बयान फरमाया है। और देखो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, हद्दिस ये अमर का सीगा है, और अमर ये भी सिर्फ वाहिद मुज़क्कर है। ये अमर सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ अपनी। मैं इन सारी बातों का जवाब देने का उस वक्त मुतहम्मिल हूँ, हामिल हूँ। मैं उस वक्त इनका जवाब दूंगा जब सबसे पहले ये साबित करेंगे कि हम हुजूर को बशर मानते हैं। मियां, मिलाद बशर का होता है ना। मैं बात सही हो रहा मिलाद बशर का हुआ करता है, नूर का नहीं। और तुमने लिखा है कि जो नबी को बशर माने वो काफिर है। पहले अपने कुफ्र का ऐलान कर, फिर आके अपनी बात को आगे बढ़ा। नबी को नूरुल इरफान, खज़ाइनुल इरफान ये सारे लिख रहे हैं, ये सारे लिख रहे हैं कि जो नबी को बशर कहे वो काफिर है। मेरा तफसीर नईमी के नंबर वाला लिखता है कि बशर मानना ईमान नहीं है। पहले पैगंबर की बशरियत का तू मुनकर है, पहले अपना इस पे इस्बात साबित कर। जब तक तू इसको आगे नहीं करेगा उस वक्त तक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तफसीर नईमी बहुत ना कैमरा ना तफसीर नईमी ये लिखा हुआ है। इनको बशर मानना ईमान नहीं, इनको बशर मानना ईमान नहीं। और सुनो, लिखा आगे इस किताब रुश्दुल ईमान के सफ़ा 45 पे, नबी को बशर या तो रब ताला ने फरमाया या खुद नबी अलैहिस्सलाम ने या कुफार ने। अब जो नबी को बशर कहे वो ना तो खुदा है नहीं नबी, वो कुफार में दाखिल है। और पहले काफिर अपने आप को ये देख अपनी मीडिया से हनफियत इसमें लिखा हुआ है। ये बात भी लिख दी है। ये बात हम खुद अकायदे आले सुन्नत के अंदर आपके मुरत्तब के ज़हीर अहमद कादरी बरकाती साहब ये लिखता है जो आदम की आदमियत से पहले वो बशर कैसे कराए, जो नबी की बशरियत का मुनकर वो मिराद पे दलील कैसे दलील नहीं, पहले पैगंबर की बशरियत मां। ये नियासुल नूर है, इसमें साफ लिखा है कि इस आयत करीमा से साबित हुआ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत बशरी न थी बल्कि हकीकत नूरी थी। पैगंबर को बशर मानते नहीं है, मिलाद कैसे होगा? नूर पैदा होता है, नूर का मिलाद किसने बनाया? पहले ये बात मान कि मैं काफिर हूँ अपनी जबान से, फिर आगे इस बात पे आ जाके ठीक है मैं मानता नहीं। इनका इस्माइल दिल भी कहता है कि अल्लाह के अलावा को किसी को गौस कहे तो मुशरिक हो जाता है। ये ठीक है ठीक है अभी मेरी बात सुनो, हवाला लेंगे उसके बाद आपके आगे बात चलेंगे। अच्छा आपके नजदीक गौस जो है वो को कहना जायज है? लेकिन गौस ये इतनी बात लिख दे, इतनी बात हल्ते बबस तो आप डाल रहे हैं। हवाला दे फिर हम आगे भी करते हैं। हवाला दे, हवाला इंशाल्लाह आपको देंगे। और इसके ऊपर इसके ऊपर आपने मुनाजिर से फिलहाल रहे हैं। अभी तक तो हमारा एक ही टर्म गुजरी है और 15 मिनट लगे हैं तो बेचारे फसल हो गए। अभी मौलाना आगे आगे देखिए होता है क्या।
थोड़ा सा हौसला रखें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके दलाइल में क्या असर होता है। आपने जितनी आयात पेश की मैंने सबका जवाब दिया है कि मुझे आप ये बताएं कि आयतें आप पे नाज़िल हुई है कि जी इनकी अपनी मनमानी तशरीह कीजिए या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी। अगर हुजूर पे नाज़िल हुई है तो क्या हुजूर ने मिलाद जो मुरव्वजा है ये मनाया, जलूस निकाले, झंडियाँ लगाई, क्या इस तरह जश्न मनाया, क्या ईद मनाया? ये सारी बातें आपने इनको छेड़े नहीं और प्यारी शरीफ का दूर समझ के हड़प कर गए हैं। कम अज कम इसको आप जवाब तो देते, कुछ बोलते तो सही। फिर कहते हैं मेरे दलाल का जवाब नहीं आया। ये मैंने आपके दलाल पे नक्श क्या पेश करते, आप कह रहे हो कि ये दिखाओ कहाँ लिखा है कि साहबा ने मिलाद नहीं बनाया, इतना काबली तो आना है या नहीं? तो हम तो सारे तो इनकार करना, मेरा पुत्र सारे तो इनकार करना। साढ़े अकाबिर ने तारुल कादरी दा इनकार किया है। कोई ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਦਾ अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत तुम दे पेश कर आला हजरत को पेश करना काटो सदा आला हजरत तेरे ठीक है मौलाना इसी पे बात है, इसी में बात हो रही है। अनवार कंजुल ईमान मुझे दो। वो लिखता है कि आला हजरत को फिरका रज़ा वाले नबियों से ज्यादा मासूम समझते हैं। तो कहता है आला हजरत के बारे में तुम्हारे बाप ने आला हजरत के बारे में कोई भी लिख सकता है। आला हजरत ने लिखा हुआ है। आला हजरत की बात, मैंने कहा आला हजरत की बात, आला हजरत की बात है, आला हजरत के बारे में नहीं। आला हजरत की बात आला हजरत के बारे में बड़ा फर्क है। दिखाता हूँ ये नहीं तुम्हारे लिखने वाले हैं, तुम्हारे लिखने वाले हैं, उनको क्या कहोगे? तो मैंने कहा आला हजरत की बात दिखाओ, उस मतलब ये मुझे हम मान के चलो आप इन तरह बताओगे तो कादरी की बात पेश की है। ये तैरुल कादरी इनके इस वक्त शेखुल इस्लाम हमारे नहीं आलमी मिलाद और मुस्तफा हमारा उन्हीं के नाम के इनके हर मस्जिद, हर मकतब, हर मदरसे के ऊपर साइन बोर्ड और फ्लैक्स लगे होते हैं। हर रक्शे और गाड़ी के पीछे उनका फ्लैक्स होता है। इन तमाम तर चीजों के अंदर ये उनकी बात इनके खिलाफ होती है। सामने निकाला है, किताबें लिख दी हैं, समझाई ना, उसके खिलाफ किताबें देवबंदी नहीं बरेलवी क्या बात है हमारा नहीं है, याद रखो। हम हयात नबी का अकीदा रखते हैं, अताउल्लाह को नहीं मानते हैं, है ही नहीं। अच्छा ये मुझे कह रहा था ना, ये मुझे कह रहा था कि कोई ऐसा मौलवी दिखाओ जिस पे हम, मैंने इसको कहा था कि तुम अपना कोई ऐसा आदमी दिखा दो जिस पे तुम सबको इत्तेफाक हो। इन्होंने कहा कि आला हजरत ऐसी शख्सियत है जिन पे हम सबको इत्तेफाक है। सुने आएगा, अब सुने, ये मेरे हाथ के अंदर अनवार कंजुल ईमान नंबर है, ये छपा है जनाब मलिक महमूद कादरी मुसन्निफ इसका है। इसको मुरत्तब करने वाला डॉक्टर अमीर रज़ा अमजद वाला तो नहीं है। सुने तो सही, बात तो सुनो। मलिक महमूद रसूल कादरी और ये अबू जुबैर है, अबू खैर जुबैर हैदराबादी साहब क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं मसलक के रज़ा वाले माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह आला हज़रत को रहमतुल्लाह अलैह को नबियों वलियों बल्कि खुद हुजूर इमामुल अंबिया से पढ़कर समझते हैं। आला तो लिखा है, बोल कह रहा हूँ आला तो लिखा है। मौलाना मैंने बात की है कि तुम्हारा मैंने ये कहा है, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा था कि किसी ऐसे आदमी को पेश करो जिसको सारे बरेलवी मानते हो। आपने कहा आला हजरत, मैंने उसमें दलील में ये बात पेश किया कि नहीं उसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। सईदी ने जो टकोर शरा मुस्लिम में आला हजरत की किया वो आपको नजर नहीं आती। उनकी बात आला हजरत की बात, आला हजरत से इख्तिलाफ किया है। मैंने आपने मुझसे सवाल किया कि आप किनको मानते, मैंने कहा आला हजरत को पेश करो। बात सुनो, आपने कहा आप मेरे सामने
है जिसको आप सब मानते हो। आपने क्या कहा? आला हजरत बयानी। मेरी बात के जवाब में आप हमारे सामने रखो। हाँ, पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये झूठ है, आला हजरत तो भी तुम नहीं मानते। ये एक हकीकत है कि अगर तेरे 10 मुक्तदी हैं तो उनमें से 5 तुझको नहीं मानते। आला हजरत के आगे नहीं मानते उसको। अभी दूसरी टर्म है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों परेशान होगा। ये ताहिरुल कादरी साहब ने लिखा है कि जनाब मैं इसको पेश करूंगा। आप ये मेरी बात सुने, मेरी आप बात सुन के मैं पेश कर रहा हूँ। आप अपनी टर्म में कह देना हम इसको नहीं मानते, ये क्या बात है, मुझे तो पेश कर दे। आप इसको सुने, ठीक है आप नहीं मानते, आप जब अपना इसका जवाब देंगे तो कहेंगे हम ताहिरुल कादरी को नहीं मानते, सीधी बात। ताहिरुल कादरी के मुताबिक आप कह दीजिएगा, उसने अपनी किताब की विलादत नबी, इसके अंदर लिखा साफ सुनिए, विलादत और वफात का दिन एक होने के बायस जब यौम मिलाद आता तो उन पर गम की कैफियत खुशी की निस्बत बढ़ जाती थी। सहाबा ने नहीं मनाया बुजुर्गों, जब सहाबा ने नहीं मनाया तो फिर ये आप कैसे कर रहे हैं कि उसको बिदअत हसनिया साबित करो। भाई अगर साहब मनाते तो फिर बात था ना, ये उस दौर में होता तो सहाबा बिदअत हसनिया करते, इसके मतलब फतवा लगाते हैं बिदअत हसनिया। हाँ किताब भेजा, अभी तो आप कहते हमारा है ये हो किताब कर दो। अभी क्या रहते हम नहीं मानते उन्हें किताब भी मान रही है, अभी किताब भी मान रही है। मेरी बात चलो हम इसको छोड़ते हैं, हम आपको माफ करते हैं, आगे चलते हैं। हम अपनी बात का आगे जवाब देते हैं जो आपने हमारे ऊपर इतराज किए हैं। कहते हैं हमें नाम से गर्ज नहीं है, रशीद अहमद नाम था हमने अब्दुल रशीद कर दिया, कोई बात नहीं। हवाले में अगर गलती हो तो फिर बात ये है मौलाना इधर मेरी तरफ तवज्जो रखो सरकार, जिस आदमी आप सुने किताब पर नाम एक लिखा हुआ होता है, मुसन्निफ का एक नाम लिखा होता है, हजरत मौलाना रशीद अहमद मुहद्दिस का कोई देख रहे हैं। जिस आदमी को पहले सफे पे बड़ा सारा नाम नजर नहीं आते वो आगे देखेगा तो उसको आगे क्या लगा है। हाँ अगली बात, आपको जब नाम का नहीं पता तो आगे मसले का आप क्या सही तरह बयान करेंगे, आप उसको गलत बयान करेंगे। दूसरी बात, अगली बात, मसले का भी जवाब देता हूँ, मसले का भी जवाब आता है, आप परेशान न हो, मसले का भी जवाब आएगा। आप मेरी बात सुने, मुनाज़रा जंग पेश कर रहे थे कि जनाब मुनाज़रा जंग देख लो, और यही ताहिरुल कादरी इस मुनाज़रा जंग में मुआविन था, और इस मुनाज़रा जंग को पढ़ो, पढ़ के अपने अकल का ठिकाना इलाज कराओ कि कितने बंदों ने इसका इनकार, कितने तुम्हारे बंदे थे बड़े बड़े चाहिए दालिम। मुनाज़िर इस्लाम तुम्हारा था जनाब निजामुद्दीन मुल्तानी, उसका इनकार किया, उमर इस्माइल का इनकार किया, उन सब का इनकार किया। अच्छा ये मुनाज़रा जंग देखो, ये देखो क्या किया कि तुम्हारे बड़े तो पहले भी आ चुके हैं। देखो मुनाज़रा जंग बिल्कुल ये उसी का वो गलत गलत उन्होंने क्या था उसका जवाब दे दिया। शाबाश शाबाश आगे आओ मौलाना मेरी तरफ तवज्जो नीचे न देखे मेरी तरफ देखिए। हाँ मैं आज ये कर रहा था कि मुनाज़रा जंग आप पेश करते हो, इधर नसीरुद्दीन पीर नसीरुद्दीन नसीर को भी पढ़ लेते ना, जिसमें सफा चमल पे लतमतुल गैब वाला इजालत गैब सफा 94 पे लिखा है कि जनाब सियानी साहब की क्या लिखा है। शरायत देखिए, शरायत में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुरान हदीस, आप कान खोल के सुन ले, बार-बार मुझे बता रहा हूँ, कुरान हदीस इज्मा और कियास, ये क्या है? ये फतावा रशीदिया कुरान रशीदिया फतावा रशीदिया ये हदीस है। अगर तुम दो पेश करते हो तो हम ये पेश जरूर करें। मुफ्ती से पूछेंगे फतवा इंचार्ज को दिया जाए, इंचार्ज को बता दिया जाए।
और सुनो भी सही ना हो हमेशा पेश किया जाता है। ये तो आप अपने पूछे। मेरी बात सुने, मैं चाहे कुछ भी पेश करूं, क्यों आप मेरी बात नहीं हम मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, मैं कैसा नहीं मानते आप, इसको नहीं मानते, साहब का जान नशीन है, इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, कह दो मैं नहीं मानता। लिखा जिससे सही है। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, आपकी मजबूत की चीज भी आ जाती है। मैं से ही कहता हूँ ये मौजूद छोड़ रहा है, ये बार बार मौजूद को छोड़ रहा है। ले आला हजरत के जो हम अकीदा है वो काफिर है, मैं तुझे आला हजरत का भी पता चकाता हूँ, मुझे साबित करो। मौलाना साबित करना पड़ेगा ये मुरव्वजा जश्न ईद मिलादुन नबी ये आला हजरत ने मनाया है, ये आप साबित करें। अगर नहीं मनाया तो फिर आला हजरत का अकीदा तुम्हारे साथ नहीं मिलता, तुम्हारी हमारे शरीयत लिखती है जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो वो काफिर है, पहले वो कफ्र का ऐलान करना है। आला हजरत का हम अकीदा ना वो काफिर है, इसको पर आला हजरत कह रहा है, छोड़ आला हजरत को छोड़ना पड़ेगा तुझे। इबादत पढ़ते मौलाना क्यों पढ़ते ये अनवारे शरीयत के अंदर ये साफ लिखा है जो आला हजरत का हम अकीदा न हो उसको वो काफिर जानते हैं, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। ये फतावा नहीं मेरे पास है सदरुल अफादिल, इसके सभा 134 पे लिखा है। और रही ये बात कि जो आला हजरत का हम अकीदा न हो उसको वो काफिर जानते हैं, ये दुरुस्त है और हर मुसलमान का ये अकीदा है। आला हजरत ने जश्न मनाया, अच्छा आला हजरत ने अगर जुलूस में शिरकत की है पेश कर दो, अभी बैठ रहे थे, अगली बात ये कह रहे थे मौलाना कह रहे थे शेख जिलानी की नहीं है रहमतुल्लाह अलैह, शेख जिलानी के नाम पर 11वीं आसान है, उनकी बात मानना मुश्किल है। एक किताब हमारे शरीयत है, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है गौसे समदानी महबूब सुबहानी सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियत तालिबीन में यही है का मजमूआ है। मुजद्दिद इस्लाम लिखा हुआ अहमद रजा, हामिद रजा, नईमुद्दीन, निजामुद्दीन, और इधर देखो जुनैद ज़मान जिसको कहते हो, मिकियास हनफियत लिखने वाला, इसने अपनी इस किताब के अंदर लिखा है। चुनाचे गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही फरमाया है, आगे गुनियत और तालिबीन का हवाला दिया है। ये तुम जिसको जुनैद ज़मान मानते हो उमर इश्र भी इसका भी इनकार कर दे, और ये वो अनवार साथिया जिसपे अहमद रजा की तकरीज खड़ी है और इसकी तईद कर रहा है, वो भी लिखता है कि गौस सकलैन में हुलिया में लिखा है। छोड़ा देखता हूँ मैं तुझे अहमद रजा को कैसे पकड़ता है। अहमद रजा हाथ में नहीं रहेगा, आगे चल मैं तुझे और दिखाता हूँ। इसको भी इनकार कर रहे। अच्छा अगली बात मौलाना कह रहे थे कि जिनाब हम बशर मानते हैं या नहीं मानते, अगर मानते हो तो काफिर हो, पहले कुफ्र लिख के दो, नहीं मानते तब भी काफिर हो, फिर भी हम दलाइल देंगे कि तुम ईमान से खारिज हो, तो पहले अपने आप को मुसलमान साबित कर। और दूसरी बात यह है कि तेरे नसीरे नईमी वाले ने जिल्द अव्वल में लिखा है नबी इनको बशर कहना बशर मानना ईमान नहीं है। अगर तू बशर मानता है तो कह मैं मानता हूँ, नहीं मानता तो फिर तू काफिर है। क्यों? कुरान का इनकार किया है। खजाइन और इरफान वाला कहता है कि कुरान में अंबिया के बशर कहने वालों को काफिर कहा गया। मौलाना पहले मिलाद के लिए बशरियत माननी पड़ेगी, और अगर बशरियत मानेगा तो तफसीर नईमी वाला काफिर कहता है तुझे। अब आपकी मर्जी है मिलाद की तरफ आ, आपकी मर्जी है अपना कुफ्र लिख के देंगे किस तरफ
اشتہار کا جواب، ربوے والے اشتہار کا جواب، وہ دونوں آپ کے اشتہارات ہیں جو جلوس کے بارے میں چھاپے جاتے ہیں، ان کے جواب دینا آپ کے ذمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظر سے لوگ میری بات پہ کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا اور ادھر ادھر بھاگنے کی بڑی کوشش کی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کو اس بات پر چھوڑتا ہوں، بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت نے ہر حال میں مجلس پڑھنے لکھا ہے، یہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی کی تقریر کھڑی ہے براہین قاطعہ پر بھی، اور براہین قاطعہ میں نفس ذکر کو مستحسن لکھا ہوا کہ وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نفس ذکر میلاد سے ضمانت نہیں پیش کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہم باعث سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ جو تم مستحب سمجھ رہے ہو یہ فقہا کا اصول لکھا ہوا ہے، تمہارے علماء کا اصول لکھا ہوا ہے کہ جب مستحب چیز کراہت تک جا پہنچے اس مستحب کو روک دو۔ حضرت گنگوہی نے اس وجہ سے فتویٰ دیا تھا یہ خرافات جو تم نے شامل کر دی ہے، حضرت گنگوہی اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اب ہر حال میں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات کئی سارے فقہا نے لکھی ہے کہ جب ایک بات جائز بھی جا کے مکروہ تک جا پہنچے اور اس سے مفاسد پیدا ہو جائے اس کو بند کرنا چاہیے۔ حضرت گنگوہی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور آگے آئیے دیکھیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، یار حیرت کی بات ہے، لکھ کے دیا ہے اہل سنت وال جماعت، اب کہتے ہیں ہم تو وجماعت ہے، وہ پہلے ہی ٹھیک لکھ کے دے دیتے تو ہے نا۔ کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیے، آگے دیکھیے جتنے دلائل بھی یہ دے رہے ہیں قرآن و سنت کے دلائل، آپ سب میں یہی بات دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ان آیات کو سن کر جشن منایا ہو، عید منائی ہو۔ میں نے عید کے لفظ پہ بھی ان کو کہا تھا کہ مجھے عید پہ دلائل دے، نہیں آئے۔ جلوس کی دلیل پتہ انہوں نے کیا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب مدینہ شریف کے اندر تو صحابہ نے استقبال کیا، یار وہ تاریخ دوبارہ کوئی نہیں آئی تھی، ہر سال صحابہ جلوس بھی لاتے تھے۔ اگلی بات کیا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ اور اگلی بات ہاں بتا رہے ہیں کیوں پریشان ہو گئے مجھے بات کرنے دو یار۔ اور مسلمانوں اور بھی سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے بڑا؟ صبح صادق کے وقت، اور یہ جلوس کب سجتے ہیں ان کے 12 بجے چاشت کا وقت جو سرکار کی وفات کا وقت ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہتے چلے جاؤں کہ یہ 12 عید انگریز نے بنا کے ان کو دی ہے۔ انگریز نے دیا ہے تمہیں کہ اس کو عید مناؤ، نور بخش توکلی اس کو عید منانے میں لگا رہا، تم اس کو عید مناتے چلے گئے۔ اور نور بخش توکلی کے ساتھ پیر جواد علی شاہ بھی ہے، اور انگریز نے تمہیں جناب خوش کرنے کے لیے یہ 12 عید دی ہے کہ یہ وفات نہیں ہے اب عید ہے، اور تم اس پہ خوشیاں منانے لگ گئے ہو کہ جناب یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ نے اس تاریخ کو ہر سال ہی جلوس نکالا تھا؟ بات سنو بات سنو بات سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے ہاں بھی یہ بات طے ہے کہ کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو سارے لوگ جا کر ان کا استقبال کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا ہے ہم استقبال کرتے ہیں۔ یار اگر آقا تشریف لاتے ہم سر کے بل چل کے استقبال کرتے ہیں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ مولانا اس کا جواب دیجیے، اگر پیغمبر کے صحابہ نے ہر سال اس آپ پیش کیے، اگر آپ اشتہارات دکھاتے ہیں ہمیں، اور مولانا نقی علی خان کا حوالہ بھول گئے ہو؟ نقی علی خان جو کہہ رہا تھا کہ جناب دلیل کتاب و سنت سے لائی جائے، مشائخ کے فعل اور قول سے دلیل نہیں لائی جاتی، اس نقی علی خان کو آپ بھول گئے تم؟ اس نقی علی خان کی دلیل تمہیں یاد نہیں آ رہی؟ اس نقی علی خان نے صاف لکھ دیا ہے کہ دلیل کتاب و سنت سے آئے۔ دلیل میری گل سنو سرکار، میری گل سنو، ہاں حوالہ نہیں اپنا
دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے، مشائخ کے فعل اور پیر صاحب کے قول سے دلیل نہیں بنتی، لہذا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت ہاں یہ انگریز کا حوالہ ہے کہ انگریز نے لوگوں کو تالیف قلم کے لیے کہا، اس کا حوالہ مارو جی، تالیف قلم کے لیے کہا کہ جناب 12 عید کا دن ہے، آپ اس کے اوپر خوشی منائیں، اور یہ آپ کہہ رہے تھے جناب کوا تھانا، کوے کا جواب تم نے کتنی جگہ کوے کو حلال لکھا ہے، اپنی ساری باتیں بھول گئے ہو، ہم کوے سے پڑھ کے حوالہ پیش کرتے ہیں، اور جادو وہ ہے جو سر سے چڑھ کے اوپر بولے۔ ہاں دیکھ اعلیٰ حضرت کیا لکھتا ہے، کہتا ہے اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر، اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر۔ آگے قرآن نے اس کی قید بیان کی کہ نہیں؟ قرآن حرمت بیان کی آگے کہتا ہے غیر مقلدیت کے اوپر ناچنے والے سنیں، آپ سنیں، یہ غیر مقلدیت کو کہتے ہیں منی کھانے، اور بھائی وہ منی کھاتے ہیں، ان کے نزدیک بھی منی پاک سبحان اللہ، اور وہ بھی سور کی، اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر فإنه من المنی والمنی من الدم والدم من الغذاء والغذاء من العناصر والعناصر الطاہرتان۔ ہائے 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 خنزیر کی طہارت کا قول تم پیش کرتے ہو، مولانا اس سے بات نہیں بنے گی آپ کی، اور اگلی بات احکام شریعت تمہاری کہتی ہے کہ یہ حتیٰ کہ نقطہ برابر خطا سے بھی معصوم بنایا گیا تھا، اس کو میں حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہاں کیا ہے آپ کو کیا نظر آئے گا مولانا؟ میری بات سنیں، آپ دیتے رہے جواب، ہم چوپے کریں، آپ کا نام سنیے یہ آپ نے 11 کے مولانا معصوم چھوڑ رہے ہیں، مولانا خنزیر کی بات لکھتے ہوئے خنزیر کو پاک تک کہہ دیتے ہیں، اور خنزیر کو جناب اصل اشیاء میں طہارت مانتے ہیں۔ اب آئیے احکام شریعت کے مقدمہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ انبیاء سے قرآن کبیرہ بھی بھول کے لکھا ہو سکتا ہے، اور خان صاحب سے نقطہ برابر بھی خطا نہیں ہو سکتی، یار وہ تو خنزیر کو پاک لکھا ہے، اب خنزیر کو استعمال کرو پتہ چل جائے تمہارا۔ ہاں کیا موضوع بیان کر رہے ہیں؟ موضوع کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کی بات کا جواب ہے، باقی جو آپ نے پیش کیے ہیں جناب، کہ جناب انہوں نے اشتہار چھاپے ہوئے ہیں، سنیے وہ میں آپ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ جو ہے ربوہ کے اندر اس کے جلوس کی وجہ سنیے، وہاں چونکہ سارا مرزیت کا گھر ہے، وہ جو اندر ربوہ شہر ہے، وہاں مرزیت کا سارا گھر ہے، مرزیت کا گھر ہے، اور اس مرزیت کے گھر کے اندر ہم اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو وہاں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے علماء اس وجہ سے جا کے وہاں تبلیغ کرتے ہیں، مولانا یہ تو علماء تبلیغ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، بدعت سیئہ تب بنے گی جب کسی کو عبادت سمجھ کے کیا جائے گا، ہمارے بزرگوں نے عبادت نہیں سمجھا، اس کو بدعت سیئہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور آپ ایک اے تسی عید تے دیکھ لو کڑیاں چھوکریاں نچا رہے ہو، اصل کتاب فوٹو کاپی دے سکتے چاہیے مولانا یہ لڑائی میں لکھا آپ نے اشتہار جو پیش کیا وہ اصل کتاب تھی، تو یہ بھی ہے، یہ اصل کتاب ہے، کسی سے نہیں ہوئی ہے یہ اصل اشتہار پیش کیا، ہمیں کام کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اصل کتاب، یہ اصل کتاب ہے، یہ اصل کتاب ہے، یہ اصل کتاب ہے، یہ جو اشتہار پیش کر رہے ہو اصل کتاب ہے، یہ اصل کتاب ہے، کہتے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کو کتاب اور اشتہار میں فرق نہیں ہے، مناظرہ کرنے آئے ایکسپریس اخبار کا یہ اشتہار
जनाब क्रिसमस डे, ये जनाब जाके ईसाइयों के चर्च के अंदर ईद भी मनाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। हाय हाय, ईद मिलादुन नबी की नमाजें पढ़ी जा रही है। और भाई उलमा का इसमें इत्तेफाक है, इतने हम हवाले आपको पेश कर सकते हैं। यारों के हवाले से दोस्त आप जब अगली बात को पेश करना चाहता हूँ कि ये जो महफिल मिलाद है इसको तुमने मुआ भी लिखा है। अहमद रजा खान ने अलामुल्लाह के अंदर इसको मुआ लिखा है। और मौलाना अहमद रजा खान ने इस मिलाद शरीफ को मुआ लिखा है अल्लाह के अंदर, और जाल हक वाला सुन्नत इलाहिया लिखता है। और तुम्हारा अब्दुल कयूम हज़ारवी अकायद आले सुन्नत अकायद मसाइल में बिदअत हसना लिख रहा है, और तुम्हारे हमारे साथी वाले ने इसको वाजिब तक लिख दिया है। और तुम्हारा ये सईद काज़मी का बेटा अरशद सईद काज़मी लिखता है कि ये दर्जा वजूब रखता है, और जो मुस्ताहब वजूब के दर्जे तक पहुंचा दो उसको बंद किया जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं है चाहने। ये फुक़हा का फैसला है। तुम्हारे मैंने इस पे उसूल पेश किया था कि फुक़हा का उसूल है जिस अमल जायज के अंदर खराफात पैदा हो जाए उस अमल जायज को भी बंद करो। आओ ये मैं हवाला पेश करता हूँ नूरुल इरफान के अंदर, गैर जरूरी इबादत का फसादात की वजह से छोड़ देना। इस पे देखिए सफर 758, दूसरा हवाला तिबियानुल कुरान सईदी, जो काम बुराई का जरिया बने उसको न करना वाजिब है। आगे चलिए पेश करो। तीसरा हवाला आगे चलिए चौथा आगे चलिए क्या कर रहे हैं असल किताबें दो यार, इनको असल किताबें किताब दिखाए। ये असली फरिश्ते हमारे पास रजिस्टर पड़े हुए हैं। पढ़ो रजिस्टर से पढ़ो। आगे चलिए किताब दिखाए, सफा बताए, कोई इबारत पढ़े। जो किताब का हम सफर पढ़ रहे हैं, हम आपको किताब सफर निकाल के आगे देखो असल बहुत पड़ेगा क्या मतलब है? बैठो यार, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। आप बैठ जाइए। दिखा रहे आपका क्या काम है? इनमें से दिखा रहे तलाश कर रहे चलने नहीं दे रहा है। ये तफसीर नूरुल इरफान मैंने पेश किया। तफसीर नूरुल इरफान, अगर गैर जरूरी इबादत ऐसे फसाद का जरिया बन जाए जो हमसे मिट न सके तो उसको छोड़ दिया जाए। ये हमारा
इसका खान का है। अहमद रजा कहता है एक जायज काम जिससे फितने और नफरत पैदा हो आपस में फूट पड़े ये नाजायज है। ये बात है अली गरीब का कुल फेर मतलब पूरी का हूँ, ये बात है। वो कहते छोड़ देना चाहिए जब इससे मफासद पैदा हो। ये तिबियान माल बयान ये सफा नंबर 276 इस पर ये बात लिखी हुई है। कामों के बाद अगर आले हक को उस जायज कौल फेल से भी रोका जाएगा जो आने बात करके किसी नजरिए की तरबियत जब बात सुने मेरी, एक जायज काम से जब मफासिद पैदा हो उस जायज काम को भी रोका जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जायज काम से जब मफासिद पैदा हो उस जायज काम को रोका जाएगा। ये बात फुक़हा ने लिखी हुई है, ये उलमा ने भी लिखी हुई है। और अब मफासिद को देखो, ये अखबारात में पेश कर रहा हूँ कि इसी आपके जुलूस की वजह से कत्ल गारत हुई और यही किसने की लोग हैं, किसने की? हाँ हम बताते हैं ये देखिए और ईद मिलादुन नबी साहब ये पहले बात नहीं करता, इस पे आप बोल रहे हैं ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस पे आपने कोई बात बोला तो मैं जो है लोग शराय से कह रहे हैं आप चुप करके बैठे, आप चुप करके बैठे, मेरी बात का आप जवाब नहीं उनको बोलने दे। मैं जवाब दूंगा। बोला ना ये कौन सी बात है, मैं पेश करूंगा बोलो शुरू कर दे। ईद मिलाद के झगड़ों के अंदर लड़ाई, इस जुलूस के अंदर लड़ाई झगड़े मुताबिक जख्मी, आप इसको देखें। फैसलाबाद डेरा इस्माइल खान के अंदर जुलूसों पे फायरिंग, उत्तर प्रदेश में जुलूस निकालने पर 2 फिरकों का तसादुम 50 जख्मी और आगे चलिए और मफादत में दिखाते चला जाओ आपको। ये जनाब ये देखिए इस जुलूस में जाकर मौलाना जियाउल कासमी साहब की मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की, कुरान पाक शहीद किए, अहादीस तैयबा का पेश किया। एक बहुत बड़ा मफसदा पैदा हो रहा है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। सबसे बढ़ के मैं ये कहता हूँ अहमद रजा खान की एक किताब है, यहाँ किताब मौजूद होगी, रिसाला ताज़ियादारी, उसने इस किताब के अंदर ये ताज़िया निकालने के मुताबिक लिखा है कि इस ताज़िया को नहीं निकालना चाहिए। अगरचे लिखा है कि अगरचा ताज़िया जो है अपनी असल के एतबार से दुरुस्त है, लेकिन मफासद की वजह से और खराबियों की वजह से इसको बंद कर देना चाहिए। और आगे खुद जाके सवाल उठाते हैं, अगर कोई बंदा सही ताज़िया निकाले मफासद से पाक साफ हो, क्या वो ताज़िया दुरुस्त है? कहता फिर भी दुरुस्त नहीं है, मफासद का जरिया बने। और ये सबसे बड़ा मफासद ये इब्लीस का नक्श, ये अजहरी, ये जनाब तुम्हारा वो अख्तर रजा खान अजहरी साहब का एक किताब और रिसाला जय्यद किस्म का है। इसने लिखा है इस किताब के अंदर कि ईद की खुशियों के अंदर हमारे बरेलियों की मस्जिदों के अंदर रक्स किया जाता है। ये देखो लड़की नाच रही है, ये देखे असल नहीं, अगर असल हो तो फिर हमसे बोलो ईद मिलादुन नबी नहीं लिखा हुआ नीचे, ईद लिखा हुआ, ईद लिखा हुआ, ईद मिलादुन नबी है, ईद लिखा हुआ है। दरबारों पे ईद मिलादुन नबी पे होया, ईद मिलादुन नबी की दलील दो, ईद मिलादुन नबी पे तो महीनात थे। ये देखो दिखाओ अपना हाथ, यहाँ पे दिमाग दिखाओ, ये क्या है दिमाग दिखाओ यहाँ पे। अगली बात ये हाफिज मसला पेश कर रहा था, ये हाफिज मसला बार बार पेश करता है। ये हजरत थानवी का रिसाला है और हजरत थानवी ने उस दौर के अंदर लिखा था कि हजरत थानवी इस बात के कायल थे, लेकिन बाद में हजरत थानवी ने रुजू करते और थोक के इसके तरतीब के अंदर लिखा है। ये तज़किरतुर रशीद के अंदर ये खत्म किताबत सारी मौजूद है। तज़किरतुर रशीद की मैं नहीं बात करता है, अगली क्यों नहीं पढ़ता, मैं आगे भी पढ़ के देख रहा हूँ। जब हजरत थानवी आगे इसके ऊपर खुद दलाल दे रहे हैं कि इसके नजायज़ पर, और ये खुतबात मिलादुन नबी इसको देख, इसमें हजरत थानवी ने दलाल अरबा से इसके मफासद और इस पे ममनुआत को साबित किया है और वो भी किया है ना। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हो, पैसे मिलते तनख्वाह मिलती। मैं वही कह रहा हूँ हजरत थानवी का ये वो दौर था कि हजरत थानवी पहले जाया करते थे, लेकिन हजरत थानवी ने बाद में रुजू करके
अब बात सुनो मेरी, अहादीस तय्यबात आप सुने, अहादीस तय्यबात के अंदर दो किस्म की अहादीस मिलती है, नासिख भी मिलती है, मनसूख भी मिलती है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर अहादीस मौजूद है कि हुजूर ने गो खाने से मना फरमाया, और अहादीस की किताबों के अंदर तिरमिज़ी वगैरह में मौजूद है कि सहाबा के दस्तरखान पे गो खाई गई। अगर तुम ये कहते हो कि पहले वाली बात हुज्जत है तो फिर आप गो खा के तुम दिखाओ, पता चल गया हर बात जो एक मनसूख हो जाए, मनसूख बात को उठा के फिर पेश नहीं किया जा सकता। हम नासिख पेश कर रहे हैं कि हजरत थानवी ने खुद बात इस मिलाद और नबी के अंदर दलाइल अरबा से साबित किया इसकी मजम्मत को, तो अब इसको तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और आगे बात सुनिए, आप कह रहे थे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ने हर हाल लिखा है, हर हाल, ये जो ये हजरत थानवी की इबारत है। और देखो हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बात आ गई, और अगली बात आप क्यों हजरत गंगोही रहमतुल्लाह की हर हाल का जवाब दे रहे थे आप जनाब, हर हाल कह रहे हो, बात सुनो, बात सुनिए, कह रहे थे कि हर हाल में हजरत गंगोही ने लिखा है। मौलाना हर हाल में तो हत्तल खिंजीर भी है कि हर हाल में खिंजीर पाक है, और वो चट के खाता करो फिर अपने दलाल से साबित कर दिया कि कुरान और सुन्नत के दलाल, और सबसे बेहतर हजरत पीर सैयद जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुर्रियतुत तालिबीन में ये बात ज़िक्र कर दी है। और हम उस कादरी को मानने वाले हैं, वो कादरी बहुत बड़ा पीर लिखता है, कादिर है, उनके मानने वाले कादरी, सुनिए वो भी कादरी है, सिलसिला कादरिया के बाद ही है, वो भी कादरी है। सुन, उन्होंने अपनी किताब हुर्रियतुत तालिबीन सफ़ा 95 के ऊपर कौल नकल कर दिया है कि जनाब जिस बात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सबूत न हो, सहाबा किराम के जमाने के अंदर भी सबूत न हो, हमने सबूत दिए, उसका अब उसकी नहीं है ना, राय नहीं है, हाँ उसकी राय लगाना दीन में बिदअत है और हदस है। जब मुतलक आए सही है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेश कर दिया। एक झूठ इसलिए बोला था कि गौस कहने वाला मुशरिक है, लेकिन उसका हवाला नहीं पेश कर सकता। मैंने तेरे आला हज़रत की तहरीर से तुझे काफिर साबित किया, हवाला नहीं पेश कर सका। तू जनाब नसीरुद्दीन का इनकार कर गया, कादरी का इनकार कर गया, वो सारे मुल्लों का इनकार करता चला जा रहा है। और अभी तो मैंने तनकीदात इक़्तिदार भी पेश करनी है, तो उसको भी इनकार करेगा। अपने मौलवियों को इनकार करके तदीब करके तू कैसे जीत सकता है भाई? जिसके अपने मौलवी को मैं इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता, जो अहमद रज़ा तक सबका इनकार करता चला गया, कैसे कहा जाए? अगर ऐसे आला हजरत के मानने वाले हो तो फिर आला हजरत का जो हम अकीदत हो वो काफिर है, तू काफिर है अपने आप को कहना, अपने आप आला हजरत ने जश्न ईद मिलाद नबी का जुलूस निकालो, पेश करो, और ये हिंदुस्तान सबसे दिखाओ, हदीस से दिखाओ, सबसे एक बात याद रखो, दलील जो है वो मुद्दई के जिक्र है ना, एक दलील भी नहीं। मौलाना मैंने दलील पेश कर दी है आपको कि अहमद रजा खान ने, सुनो 1932 के अंदर सबसे मैं दलील पेश करता हूँ, ये सीरत अनवार मदरिया 1932 के अंदर सबसे पहला जुलूस निकाला गया था। कौन सा है?
वक़्फ़ सर बुलंद नारे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारा हैदरी भी लाओ नारा ऐसा मुमकिन है?